नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां हाथी की पीठ पर संविधान रखकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आगे बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां पड़ोसी की दीवार गिरने से 2 राजमिस्त्रियों की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर हर कोई याद कर रहा है। 14 अप्रैल को पूरे देश में धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। गुजरात में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। राज्य में इस वर्ष अहमदाबाद के साणंद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। साणंद में संविधान को हाथी पर रखकर भव्य संविधान जुलूस निकाला गया। पूरा शहर जय भीम के नारे से गूंज उठा। लोग नीले झंडे, नीली टी शर्ट और लाइव डीजे की धुन के साथ सड़कों पर नाच रहे हैं। साणंद में आयोजित इस भीमोत्सव कार्यक्रम में साणंद तहसील के हजारों लोगों ने भाग लिया। ये यात्रा पूरे शहर में भ्रमण किया और रात्रि में भीम गरबा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते भीमराव यशवंत अम्बेडकर भी मौजूद थे। अम्बेडकर चौक से ही बाबा साहेब की तस्वीर और संविधान के प्रति को हाथी पर रखकर जुलूस शुरू हुआ। युवा जय भीम लिखे नीले झंडे लहरा रहे थे। इस रैली में हाथी के साथ 2 बग्गियां भी शामिल हुई और सभी समाज ने इस जुलूस में हिस्सा लिया। શું નામ તમારું? મારું નામ છે રાહુલ વાઘેલા। રાહુલભાઈ, આજે બાબા સાહેબની જન્મ જયંતિ છે, વિશેષ કાર્યક્રમ હતો, શું એનું આયોજન અને શું કહેશો? એના વિશે એક જ કહીશું। પહેલાં તો સૌપ્રથમ જય ભીમ, જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય। અને એક જ વસ્તુ કે જે બાબા સાહેબે ખાલી દલિત સમાજ નહીં પણ અન્ય સમાજ માટે જેને કામ કર્યું છે ટોટલી, જે બધું એના એક વખાણવા લાયક છે। કેમ કે જે બાબા સાહેબે જે 14 એપ્રિલ જે એના નામે ઉજવાય છે, જે એક જ આખા પૂરા આપણા ભારત દેશ નહીં ખાલી ઓલ ઇન્ડિયામાં એના જે સિમ્બોલ ઓફ નોલેજ તરીકે ઓળખાય છે। એનું જે મોટું સ્ટેચ્યુ છે એના કારણે એક આખું શું કહેવાય, પેલા બંધારણના ઘડવૈયા કહેવાય બાબા સાહેબ આંબેડકર। એટલે આને આખા જે કાયદો એને જે ઘડ્યો છે બાબા સાહેબ આંબેડકરે એ બહુ સરસ, અને એના કારણે જે આપણે સ્વતંત્રતા મળી છે, જે અનામત જે અત્યારે આજે લેડીઝો 33% અનામત જે અત્યારે નોકરી જોબ કરી શકે છે, જે બાબા સાહેબના આંબેડકરના એના કારણે જે આ રહ્યું એનું વર્ચસ્વ છે એમ તો લેડીઝને ઉપર। શું નામ તમારું? ભાવના સોલંકી। ભાવનાબેન, આજે બાબા સાહેબની 134મી જન્મ જયંતિ વિશેષ કાર્યક્રમ સાણંદમાં હતો, આપ સૌ ભાગ લીધો, શું કહેશો? બહુ જ સરસ છે, બહુ જ સારું લાગ્યું અને આવો કાર્યક્રમ તો થવો જ જોઈએ બાબા સાહેબ માટે। કેમ કે એમને જે કર્યું છે એ કદી એ ભૂલાય એવું જ નથી કોઈની માટે, બધાની માટે બહુ જ સરસ કાર્યો કર્યા છે। જે આ લેડીઝો અત્યારે જે ફરી શકે છે, જે સ્વતંત્રતા મળી છે લેડીઝોને, એની માટે તો બહુ ખૂબ જ એમ કે આભાર માનવો જોઈએ બાબા સાહેબનો, કે જીવીએ ત્યાં સુધી બાબા સાહેબને એમનો આભાર માનવો જોઈએ કે લેડીઝો અત્યારે રાત્રે સુધી ફરી શકે છે એકલી, કે આપણા ગુજરાતમાં તો હજી બહુ જ સારું છે અને તો બી એટલે બાબા સાહેબ જે પણ કંઈ કરે છે કામો કે આપણા સમાજ માટે કે બધા, હું એમ કહું છું કે સર્વ હિન્દુ માટે તો બહુ જ સારા કાર્યો કર્યા છે એમનું તો ભારતમાં નહીં પણ બહારના દેશોમાં પણ એટલું બધું નામ છે, એટલું બધું લોકો માને છે, શિક્ષિત કર્યા છે અને શિક્ષિત થવું જોઈએ એવું કહેતા હતા। અને સાચી વાત છે, અત્યારે શિક્ષિત ના બનીએ તો કંઈ જ કામનું નથી। એટલે છોકરાઓ ભણાવો, છોકરીઓ ભણાવો અને શિક્ષિત બનાવો। બાબા સાહેબ એમ જ કહેતા હતા કે શિક્ષિત બનશો તો જ આગળ થશો, વધશો અને કંઈક થશે તમારું કલ્યાણ। બસ એ જ છે કે શિક્ષિત બનો અને સારા બનો તો જ સારા તમે કર્મો પણ કરી શકશો। કેમ કે તમને જ્ઞાન હશે શિક્ષાનું, કે તમે શું કરો છો એ તમને ખબર હશે, શિક્ષણ હશે તો જ તમે બધું કરી શકશો। તો બાબા સાહેબનું આ કદી ભૂલાય જ નહીં કે બહુ જ સરસ કાર્ય કર્યું છે। એટલે બાબા સાહેબને તો બસ સત નમન છે। નામ આપનું? મારું નામ ગિરિરાજ ચાવડા છે। આજે સાણંદ શહેરમાં એક બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે એક જાહેર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। તો એ રેલી સાણંદ બાબા સાહેબ આંબેડકરના સ્ટેચ્યુથી થઈ અને આખા સાણંદ શહેરમાં ફરી અને પાછી સ્ટેચ્યુએ રિટર્ન જવાની હતી, એ રીતનો આજનો પ્રોગ્રામ હતો। બહોળી સંખ્યામાં આજે લોકો બહાર નીકળ્યા અને બાબા સાહેબની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે સૌએ ખૂબ ઉલ્લાસથી તેમને વધાવ્યા છે અને સાણંદની સમગ્ર વ્યક્તિઓએ બહાર નીકળી અને ફૂલહાર વિધિ કરી બાબા સાહેબ આંબેડકરને। અને બાબા સાહેબ આંબેડકરે મહિલાઓ માટે ઘણા બધા કાર્યો કર્યા હતા, એટલે બહોળી સંખ્યામાં મહિલાઓ પણ આજે બહાર નીકળી હતી અને સાણંદની અંદર લગભગ 10,000 લોકો રેલીમાં જોડાયા હતા અને વિશાળ સંખ્યામાં રેલીનું આયોજન કરેલું હતું। જય ભીમ। આજે બાબા સાહેબની જયંતિ નિમિત્તે સાણંદની અંદર સમાજ તરફથી જે રેલી અને સૌહાર્દની એક મશાલ
નું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં તમામ સમાજના આગેવાનોએ બાબા સાહેબનું સન્માન કર્યું અને ત્યાર પછી રેલીમાં જોડાયા અને ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા મહારાણા પ્રતાપના સ્ટેચ્યુ આગળ ખાસ પાણીની ઠંડા પીણાની વ્યવસ્થા કરી હતી અને દલિત સમાજના તમામ આગેવાનોએ મહારાણા પ્રતાપના સ્ટેચ્યુને હારતોડા કરી મહારાણા પ્રતાપની જય બોલાવી, સામે બાબા સાહેબની પણ જય બોલાવી અને તમામ સમાજની સૌહાર્દતા જળવાય, સંમેલન જળવાય એ રીતનું આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને આખાય ગામના વેપારીઓ, તમામ સમાજના આગેવાનો આ પ્રોગ્રામની અંદર હાજર રહ્યા હતા. તમામ પોલિટિકલ પાર્ટીના આગેવાનો પણ આ કાર્યક્રમની અંદર હાજર રહ્યા હતા. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। स्थानीय अकोला उपशहर प्रभाग क्रमांक 14 शिवनी में बीजेपी के ओर से संपूर्ण महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर पुतले के जलापूर्ति करके स्वच्छता की गई। शिवनी में सुलाई बुद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके पूर्णाकृति पुतले को बीजेपी के आमदार रणधीर सावरकर इन्होंने जलापूर्ति करके पुतले की स्वच्छता करके अभिवादन किया। इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी श्रावण इंगले, विजय अग्रवाल, जयंत मसड़े, विशाल इंगले, प्रवीण जगताप, राजू वगैरे, शांताराम मुरुमकार, राष्ट्रपाल इंगले, गोपाल मुले, अनिल मुरुमकार, संजय सिरासाट, अनिल ढोके, दिनकर काले, रवि डोंगरे आदि कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में निहास खोदने के दौरान अचानक दीवार गिरने से दबे 2 राजमिस्त्री दबने से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तत्काल लोहिया अस्पताल भेजा, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने दोनों राजमिस्त्रियों को मृत घोषित कर दिया है। थाना कादरी गेट के मोहल्ला अल्लाहनगर बड़पुर में राघव दुबे निवासी अड़ियाना के प्लॉट में निहास की खुदाई के बाद राजमिस्त्री रंजीत उम्र 50 वर्ष, इशरत 50 वर्ष निवासी आंडियाना निहास में कार्य कर रहे थे। उस दौरान अचानक पड़ोस के पूर्व सैनिक अमरीश तिवारी के प्लॉट की निहास की दीवार भरभरा कर कार्य कर रहे लोगों के ऊपर गिर गई, जिसमें कई मजदूर चपेट में आ गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 50 वर्षीय इशरत पुत्र अशरफ निवासी आड़ियाना व 50 वर्षीय रंजीत पुत्र राजाराम जाटो निवासी बड़पुर को जेसीबी से रेस्क्यू कर बाहर निकाल कर जिला अस्पताल लोहिया भेजा गया, जहां डॉक्टर प्रभात वर्मा ने दोनों राजमिस्त्री रंजीत इशरत को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने दोनों मृतकों के शवों को मोर्चे में रखवाकर पुलिस को सूचना भेज दी है। घटना की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, एसपी आलोक प्रियदर्शी, एसडीएम सदर रजनीकांत ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। अन्य लोगों के दबे होने की आशंका में अभी भी रेस्क्यू जारी है और मलबे को जेसीबी द्वारा हटाया जा रहा है। घटना के बाद काम कर रहे अन्य लोग मौके से भाग उठे। जानते हैं मृतक रंजीत का पुत्र और डीएम फर्रुखाबाद आशुतोष द्विवेदी और डीआईजी एसपी फर्रुखाबाद आलोक प्रियदर्शी का क्या कुछ कहना था। सर जो है यहाँ पर जो एक निर्माणाधीन मकान चल रहा था, उसमें जो है मजदूरों की दबने की संभावना है, जिसमें 2 लोग निकाले गए। उनकी क्या हालत और कितने लोग अभी दबे हुए हैं? 2 लोग दबे हुए हैं और दबे हुए थे, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। शायद उनकी डेथ हो गई है, फिर भी हम लोग जिला अस्पताल जाकर देख रहे हैं और संभावना तो नहीं है, फिर भी अपने एहतियात के तौर पर जेसीबी से खुदाई की जा रही है, ताकि यदि कोई और दवा हो तो उसकी स्थिति पता चल जाए। अभी रेस्क्यू किया जा रहा है? हाँ, रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ कैसे एक कौन थे जो खत्म हुए? पापा हमारे। क्या शुभ नाम था इनका? श्री रंजीत सिंह। कैसे हो गया आपका? जो पापा काम कर रहे थे तो न्यास वो खुद रही थी। हाँ हाँ। एक तरफ दीवार उठी हुई थी हाँ। और एक तरफ पाड़ बंधी हुई थी, तो उधर भाई दीवार पलटते हुए हादसा हुआ। दोनों लोग और कौन था साथ में? और दो मिस्त्री थे और काफ़ी लेबर नीचे लगी हुई थी, इसीलिए कारण हुआ दीवार पड़ने के कारण लेबर नीचे दब गई और मिस्त्री लोग आगे पाड़ खींचने का ऐसे हादसा हुआ। कितने लोग आए यहाँ पे? अभी 2 लोग आए हैं। अच्छा, और भी लोग दबे हैं? काफ़ी दबे हुए हैं। अभी लेबर की कोई जांच पड़ताल नहीं है, कितने उसमें हैं कितने नहीं है। ये क्या मिस्त्री थे? हाँ, ये मिस्त्री है। खत्म हो गए हैं? अब ये अभी जानकारी नहीं है इनकी। नहीं, ये तो खत्म ही हो गए। अभी कोई जानकारी नहीं इस चीज़ में। तो क्या खत्म हो गए? हाँ, खत्म। जो है निर्माणाधीन मकान था, भड़भड़ा गिर गई है। कितने लोग जो है दबे हैं और क्या हालत है उनकी? देखिए, जो दीवार गिरी है उसमें 2 लोगों के दबे लोगों की सूचना थी। एक जो व्यक्ति वहाँ काम कर रहा था वो थोड़ा वैसे गिरने लगी, वो वहाँ से भाग गया।
बाद में खुदाई करने के बाद 2 व्यक्तियों के शव बरामद हुए, जिनकी जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। अभी एक्सकवेशन का काम चल रहा है। यदि वैसे तो संभावना नहीं लग रही है, लेकिन यदि कोई और व्यक्ति अंदर पड़ा हो तो उसको निकालने के लिए जेसीबी और तमाम जो भी यहाँ पर राहत व्यवस्था वो कराई जाएगी। सर, जो दबे हुए थे उनकी मौत हो चुकी है। अभी उनको अस्पताल भिजवाया गया है। मैं और डीएम साहब नहीं जा रहे हैं, वहाँ की स्थिति देख के आपको। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड के सभागार भवन में अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ चौपारण के तत्वाधान में सामाजिक न्याय के पुरोधा, संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर चौपारण प्रखंड में एक भव्य और गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सह संचालन रेवाली पासवान ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ जिला कार्यकारी अध्यक्ष सह चौपारण प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष बैजू गहलोत एवं विशिष्ट अतिथि भुवनेश्वर यादव, समाज सेवी मुखिया उपेंद्र यादव उर्फ गुलाबी यादव, मुखोया उषा देवी, ताजपुर पंचायत मनान वारसी बरही कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष कार्तिक पासवान, प्रेमधारी पासवान, अनिल वर्णवाल, बीरबल साव ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर संयुक्त रूप से किया। समारोह में परिसंघ के प्रखंड अध्यक्ष रेवाली पासवान, संरक्षक अभिमन्यु प्रसाद भगत, सचिव कृष्णा पासवान, उपाध्यक्ष मोहन भारती, संतोष रविदास, कोषाध्यक्ष संतोष रजक, सुकेश रजक, आलोक पासवान, रामचंद्र पासवान, नरेश पासवान, पंकज पासवान, अभिषेक गहलोत, अजय पासवान, विनोद भुइया, मनोहर मुंडा, बंधन मुंडा, नरेश सिंह, पप्पू चंद्रवंशी आदि लोग शामिल थे। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर की शाहगंज नगर की प्रमुख सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज सिटी की जूनियर जेसी विंग ने आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में फायर सेफ्टी पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। शाहगंज फायर सर्विस के जवानों ने इस मौके पर संस्थान की सैकड़ों छात्राओं को आग लगने पर किए जाने वाले उपायों के लिए जागरूक किया। जेजे चेयरमैन रौनक मोदनवाल ने बताया कि संस्था द्वारा आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में छात्राओं के लिए फायर सेफ्टी पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मौके पर शाहगंज फायर सर्विस में तैनात रविंद्र सिंह, हिमांशु सिंह और राहुल सिंह ने छात्राओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर से आग लगने पर किए जाने वाले उपाय के बारे में बताया। अग्निशमन कर्मियों ने छात्राओं को फायर एक्सटिंग्विशर के उपयोग के तरीके बताए। वहीं ये भी बताया कि आग लगने के बाद प्रयास करके सिलेंडर को सीधा कर लें ताकि उसके फटने की आशंका कम हो जाए। छात्राओं को गीले कंबल, बाल्टी और अन्य तरीकों से आग बुझाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में संस्थान के प्रधानाचार्य जेएस कुट्टी, पूर्व अध्यक्ष सौरभ सेठ, कार्यक्रम संयोजक सक्षम मोदनवाल, सचिव आदित्य अग्रहरी, रोहित गुप्ता, आयुष अग्रहरी आदि मौजूद रहे। जेसीआई शाहगंज सिटी के जूनियर जेसी विंग द्वारा फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कराई गई, जो कि हमारा आरके इंस्टीट्यूट में हुआ और शाहगंज के फायर सर्विस द्वारा जो ट्रेनिंग दी गई उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा फायर सर्विस टीम को और हमारे आरके इंस्टीट्यूट परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। क्या नाम आपका? जेजे चेयरमैन जेजे रौनक मोदनवाल। सभी का यहाँ पे आने के लिए रवि सर का और रविंद्र सर का और उनके सहयोगियों का, जेजे विंग के सारे मेंबर्स का और जे चेयरमैन सर का, स्कूल परिवार और स्कूल परिवार का, प्रिंसिपल सर का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद। Adequate knowledge regarding the firearm safety, especially for some incidents occurring, they are not aware about that how it can be managed. So anyway, your knowledge is everybody is happy for that. Yes. So I'm giving thanks for you, especially for the sir, everybody. Okay, it is thank you for all. So the next opportunity also we are expecting that you have to be here. जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। 134वीं अंबेडकर जयंती पर कन्नौज जनपद में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम पर हुए आयोजन। अंबेडकर प्रतिमा स्थलों की सफाई करवाकर माल्यार्पण कर मनाई गई जयंती। छिबरामऊ में पूर्वी बाईपास से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
ये शोभा यात्रा पूर्वी बाईपास से शुरू होकर मेन मार्केट से होते हुए ग्राम बड़ेपुर में स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर ये शोभा यात्रा समाप्त हुई। इसके बाद लोगों ने पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया। इस दौरान समाज सेवी उमर फारूक बंटी ने भारत रत्न बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं कन्नौज में भी कलेक्ट्रेट सभागार में अफसरों ने बाबा साहब को याद किया। संविधान निर्माण में उनकी अहम भूमिका को की दी जानकारी। डीएम बोले, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम पर 15 दिन आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। तो वहीं कन्नौज में भी निकाली गई शोभा यात्रा में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण व कन्नौज पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने भी शोभा यात्रा में भाग लिया। जानते हैं डीएम कन्नौज शिवराम कुमार शुक्ला और समाज कल्याण राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश असीम अरुण का क्या कुछ कहना था। क्या लक्ष्य, किस तरह से यात्रा निकाली जाएगी, कहां से कहां जाएगी? आज 14 अप्रैल है और कन्नौज में हम सब एकत्रित हैं बाबा साहब की जयंती को धूमधाम के साथ मनाने के लिए। कन्नौज नगर से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से खूब सारे लोग आए हैं, अपनी अपनी यात्रा लेकर के आए हैं और एक हर्षोल्लास के माहौल में कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि ये संकल्प का समय है जो डबल इंजन की सरकार ने हम लोग को विशेष योजनाएं दी हैं, खासकर सीएम युवा जैसी योजनाएं दी हैं, फैमिली आईडी के लिए। मैं सबसे अनुरोध करूंगा स्वयं भी उसका लाभ लीजिए और अपने आसपास पड़ोस में एक परिवार को और लाभ दिलाइए। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सब उन्नति के साथ में अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्म जयंती मनाई जा रही है हमारे जनपद कन्नौज में। और सर्वप्रथम मैं और हमारे यहाँ के जो भी यहाँ के बंधु लोग हैं, सभी लोग सामूहिक रूप से बाबा साहब के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और संकल्प करते हैं कि जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, जो हमारा उन्होंने मार्गदर्शन किया है, उन्हीं रास्तों पर हम चल के अपने इस भारत भूभाग को अपने अमृत काल में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाने के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये सभी हमारे शासकीय कार्यालयों में और सभी नगर निकायों में, इसके अलावा सभी हमारे जो ब्लॉक हैं वहाँ पे ग्राम पंचायतों में, विद्यालयों में और बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही एक 15 दिवसीय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इस थीम के तहत भी एक कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें प्रभात फेरी निकाली जाएगी सभी हमारे ग्राम पंचायतों में। और जो बच्चे हैं उनको अपने संविधान के बारे में, बाबा साहब के व्यक्तित्व के बारे में एक जानकारी दी जाएगी। तरह तरह के इसमें डिबेट होंगे, अन्य प्रकार के कंपटीशन होंगे। तो इस बार का जो ये हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, एक ये 14-15 दिवसीय कार्यक्रम, ये भी पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।